Good afternoon, everyone. You guys know the topic, you got the schedule, everything, so you are aware of what we are going to do now. But before we'll start, I would like to say thanks to Sandhya ma'am, thanks to StyleSpeak, HBS, and I think it's really an awesome platform for me, and this is third time I'm here today just because of you. Thank you so very much for giving me this opportunity. And today we are going to talk about radio frequency. So before we'll start with the presentation and we'll start actually talking about that, I would like to know how many of you are already using it? Anyone already using radio frequency? In your salon, in your clinic, are you guys using anyone? You're using it? That's nice. So what is the facials you do with radio frequency normally? You just do just the radio frequency, or how do you do that? Like more like a treatment, or is the part of a facial? Part of a facial, okay. Okay, और बाकी सबके लिए ये नया है क्या? At least you guys must have seen also, right? Use नहीं भी किया है तो you are aware of क्या use है उसका और कैसे होता है, right? So let's start a little bit of theory on that, and then we will demonstrate also. So I would need someone to initiate to become a model for us for demonstrating the machine also. Anyone who would like to initiate? I have Himisha with me. She is my colleague, so we both are from CB Pro Academy, and we are into skincare products also. So today we are here to present radio frequency treatment for you guys. Radio frequency treatment, when we are going to do that, as usual कोई भी facials या कोई भी treatment करते हैं तो उसके पहले हम लोग consultation करते हैं. आज सुबह से we are talking about that. All the experts have come here and they spoke about client consultation कितना important है and all. So client consultation जब करते हैं उसमें radio frequency से related जब consultation करेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा different होगा जैसे. So that's going to be like क्योंकि आप machines use कर रहे हो तो general consultation के साथ साथ you have to be very sure about the contraindications and all also. But radio frequency होता क्या है, we will start. In meanwhile, she is just going to start with the cleansing toning, so that she'll prepare the skin, and by the time we'll finish little bit of theory, the introductory theory of RF, then I'll be demonstrating the machine also. So yes. So what is radio frequency? In general क्या जानते हैं हम उसके बारे में, क्या यूसेज है उसके बारे में? हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ये नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट का एक तरीका है. वी यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट. बट नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट के तो बहुत सारे मशीन्स है, राइट? सो व्हाई आरएफ? क्यों हम आरएफ को चुनेंगे, क्या डिफरेंट है उसमें और क्यों ये और क्या क्या रिजल्ट्स मिलता है? सो नॉर्मली नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट में यू नो दैट उसमें कॉन्टोरिंग होती है, फेस शेप्स, जो आपका जॉ लाइन्स इम्प्रूवमेंट है या फेस कॉन्टोरिंग, यू वर्क फॉर दैट. So obviously when you are working with something like that, it helps for boosting up the collagen elastin. ये सब कैसे होता है और क्यों होता है? So और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट और एक क्या है कि ये बहुत क्विक रिजल्ट देता है आपको. Like literally that's why it is also known as a lunchtime facial. If you are doing it like a treatment, सिर्फ आप ये as a treatment कर सकते हो. Not necessary you will do it like a part of a facial. And believe me, just doing the RF, you get the result of complete facial also, because you do see हर फेशियल के एंड में व्हाट इज द रिजल्ट यू एक्सपेक्ट. सारा फेशियल होने के बाद, नॉट ऑडिबल, ओके. सो आई वाज सेइंग कि सारे फेशियल्स होने के बाद कोई भी फेशियल में रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्लाइंट्स, क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड रिजल्ट? सबको ग्लो चाहिए होता है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए होती है. सो इररिस्पेक्टिव कोई सा भी कंसर्न है, ग्लो चाहिए हम लोगों को. सो बिलीव मी, सिर्फ ये एक करते हुए आप रेडियो फ्रिक्वेंसी करते करते भी इमीडिएटली यू सी अ नाइस ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हेन इट इज वर्किंग फॉर एंटी एजिंग ऑल्सो. वो कैसे होता है, क्यों होता है, दैट इज ऑल्सो आई विल कम अप. सो दैट्स द रीजन इट इज लाइक लंच टाइम फेशियल में क्विकली, व्हाई इट इज कॉल्ड लंच टाइम फेशियल, बिकॉज विद इन हाफ एन आवर यू कैन फिनिश इट. यू no need to do the complete facial.
द कंप्लीट फेशियल इज फॉर द फील गुड फैक्टर ऑफ योर क्लाइंट, कि उनको अच्छा लगे कि आपने मसाज किया है, पैम्पर किया, रिलैक्स किया है, सब कुछ, बट रिजल्ट वाइज आपको जस्ट RF वो रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। सो अब ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत वैरायटी है और बहुत सारे चीज़ें मार्केट में आए और वो नए नए चेंज होते रहते हैं। सो इट्स लाइक डिफरेंट टाइप व्हेन वी कॉल और टॉक अबाउट, दैट्स कॉल्ड यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ये क्या होता है? तो ये 3 तरह के जो डिफरेंट तरीके थे रेडियो फ्रिक्वेंसी का, जिन्होंने भी यूज़ किया है या देखा भी होगा, कभी पिक्चर्स में देखे होंगे। सो यूनिपोलर में कैसा आता था, हम सब गैल्वेनिक यूज़ किए हैं, अभी भी करते हैं। सो गैल्वेनिक में कितने पोलैरिटी होते हैं? 2 होते हैं। सो आप पॉजिटिव नेगेटिव, आपका ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आप क्लाइंट के हाथ में देते हो, राइट। सो सिमिलरली इसमें क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी अनदर प्लेट जो क्लाइंट के बॉडी के ऊपर रखते थे, या तो बैक के ऊपर रखो या एनी वेयर बॉडी को टच करके रखते थे, एंड द एक्टिव इलेक्ट्रोड जो फेस पे होता था। सो ये आपको कंप्लीट करता था सर्किट, एंड दैट्स हाउ इट यूज्ड टू वर्क। सो उसमें क्या होता था कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम करंट पास कर रहे हैं। सो मेरा ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? फेस पे, बट वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए इफ आई एम कीपिंग इट ऑन बैक और द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक और एनीवेयर, वहां तक करंट जा रही है सब। सो इवेंचुअली जैसे मशीन्स में भी दे कम विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव करते रहते हैं। सो देन दे हैव कम अप विथ बाइपोलर, जिसमें क्या हुआ, इन द सेम इलेक्ट्रोड यू गॉट बोथ। So on the face it is there. In my next diagram you will see in the PPT, the current comes positive and it starts and then completes the circuit on the face only. So it's right there, you are not passing the current anywhere all the body, and इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता कि क्लाइंट को उससे डर लगे या टेंशन हो, बिकॉज जस्ट फेस पे प्रोब टर्न हो रहा है। बट जब आप क्लाइंट को गैल्वेनिक भी करते हो, उनको बोलते हो आपको दूसरा अपने हाथ में पकड़ना होता है, थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, राइट। सो थोड़ा सा एक अनकंफर्ट जोन होता है, दे कैन नॉट रिलैक्स, दे फील लाइक वो हाथ में पकड़े हैं, वो स्ट्रेस है। सो दिस इज इन दिस दैट इज नॉट द केस, ओके। एंड नेक्स्ट, सो नाउ व्हाट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी एज अ कॉन्सेप्ट? अल्ट्रासाउंड हम सबने यूज किया सैलून में, कैसे चलता है अल्ट्रासाउंड, कैसे यूज होता है और वो कैसे आपको रिजल्ट मिलता है उसमें? वी नो उसमें साउंड वेव्स होते हैं। साउंड वेव्स की वजह से क्या होता है कि किस तरह वो काम करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जब पानी में पत्थर डालते हो, क्या होता है, वो पानी पूरा वहां से हटता है जब पत्थर जा रहा है, और वो वेव से जितने फोर्स से वो जाता है पीछे, उतने फोर्स से वापस आता है। सो समथिंग सिमिलर वे में आपका अल्ट्रासाउंड जो है साउंड वेव्स में उस तरह से काम करता है, और आपका उस फोर्स में प्रोडक्ट पेनिट्रेशन होता है। सेकेंड रीजन इज वो हीट डेवलप कर रहा होता है, so because of the heat also the product penetration happens, and with the heat lot of other benefits, you see the blood circulation improve होता है, blood circulation improve होते ही overall skin में you see lot of difference, lot of changes, you see that कि आपका collagen elastin boost up होना, जो भी active ingredient आप use कर रहे हैं वो penetrate होना, so lot of changes you see all thing because of that. So similarly when we are talking about RF, why I was giving the ultrasound example, because ultrasound you guys are already aware of और बहुत सालों से use कर रहे हो. So if RF is you are not using it, you will be able to connect it better. So now RF कैसा है कि RF is radio frequency. So how is radio frequency? Is it good or is it bad? So उससे क्या फर्क पड़ता है? So my diagram will help and it will show that radio frequency कहाँ है आपका, जिस तरह से आपका माइक्रोवेव है उस तरह का आपको उससे भी कम चार्ज है, एंड उसके बाद कहाँ से आता है, विजिबल लाइट आता है, उसके बाद यूवी रेज, एक्स रे, गामा, सो दे आर गोइंग टुवर्ड्स द हार्शेस्ट साइड एंड दिस इज द माइल्डेस्ट साइड. सो रेडियो फ्रिक्वेंसी वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल लाइक माइक्रोवेव वगैरह जैसे काम करता है उस तरह सा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे काम करता है. सो दिस इज नॉट like harmful for the skin, but yet what happens is because of the vibration it creates that heat. माइक्रोवेव में लाइट घूमती है और वो हीट क्रिएट करता है, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इट क्रिएट्स हीट इन द सेल्यूलर टिश्यूज, हमारे स्किन में वो हीट क्रिएट होता है. सो हीट की वजह से आपके स्किन में ये सारी चेंजेस हो रहे हैं. सो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करना है, सिर्फ आपको कंडक्टिव जेल यूज करना है ताकि आपका मशीन अच्छे से वो करंट को फ्लो होने दे स्किन के ऊपर. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन डू इज, कंडक्टिव जेल इज इम्पॉर्टेंट,
you want to add on something in that, you can do it. Maybe like you know आपका conductive gel में आपके कोई और active ingredients नहीं है, if you feel like मुझे quick करना है काम, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें ही मैं थोड़ा vitamin C serum डाल दिया या hyaluronic acid के serums डाल दिए, anything like anti aging के आपके पास कोई अलग सीरम है, you can just add that so that आपका एक बार में दोनों काम हो सकता है, जैसे करके वैसे कर सकते हैं. वरना RF complete होने के बाद then we will do something like better penetration if we have time. So nowadays these machines whatever are there, you guys are well versed aware of ऐसे fancy machines से आपको मालूम है उसमें एक साथ 8-10 attachment आते हैं, आपको सब कुछ करना है एक साथ, तो you can actually program that way. Okay, so this because of the electromagnetic energy it helps to rejuvenate the skin totally and जिसमें it helps to boost the fibroblast cells जिसकी वजह से हमारा elastin collagen जो है वो boost होता है. और जैसे elastin collagen boost होता है तो we know it works for anti aging के जितने साइंस है उसमें सारे में काम करता है, राइट. सो एंटी एजिंग के साइंस क्या क्या है? सिर्फ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, क्रोस फीट है, और एनीथिंग एल्स? ड्राइनेस, यस, और कुछ? डिहाइड्रेशन, ओके ओके. पोर साइज भी चेंज होता है, सैगिंग, ओके. 7 साइंस ऑफ एजिंग ओले का ऐड याद नहीं है हम लोग को? सो पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन स्पॉट्स, राइट. सो वो सारी चीज भी एक साथ आ जाते हैं. सो ये सारे चीज एक साथ इसमें कवर होता है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन ट्रीटमेंट कि आप सिर्फ सैगिंग या फाइन लाइंस रिंकल्स पे ही नहीं काम कर रहे हो, आप उसके जो भी डिस्कलरेशन है उस पे भी काम करते हो. इज इट नॉट सरप्राइजिंग? कैसे होता होगा डिस्कलरेशन पे हम कैसे काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं डिस्कलरेशन पे? एनीवन कैन से एनी आइडिया? जितने भी फोटो एजिंग साइंस है, जो सन की वजह से जो एजिंग साइंस होते हैं, वो सारे साइंस पे इजीली इट वर्क्स जब इलास्टिन कोलेजन बूस्ट हो रहा होता है. सो अ वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक मे बी बहुत एग्जाम्पल वाइज शायद इतना स्पेशल नहीं लगे, बट आई एम श्योर एवरीवन कैन कनेक्ट दैट. सपोज हम कोई कपड़े को वॉश करके धूप में सुखाने को डालते हैं और बहुत टाइम तक वो धूप में है, तो आप क्या क्या देखते हो? उसको सिर्फ कलर ही फेड नहीं होता है, वो बहुत क्रिस्प कड़क सा भी हो जाता है, राइट. एक्स्ट्रा सन में रख के क्रिस्प और कड़क हो जाता है. उसके बाद भी आप नहीं निकालते हो तो क्या होता है? वो मटेरियल फटने भी लगेगा, उसका धागा भी खिंच जाता है और अंदर से ही वीक होता है. यू जस्ट पुल इट, इट विल टेयर ऑफ, राइट. लिटरली हमारे स्किन में कोलेजन इलास्टिन उसी तरह से होता है. सो जब आप उसको कोलेजन इलास्टिन को प्रोटेक्ट कर रहे हो या उसको बूस्ट अप करने को कोशिश कर रहे हो, तो आप उसके सारे नए सेल्स जब आ रहे हैं, सो जो हेल्दी सेल्स होते हैं, नए सेल्स जब आते हैं, दे ऑब्वियसली एक्चुअली कम अप विद अ बेटर लाइक रिजुविनेशन जो हम बोल रहे हैं ना, वो उस तरह से ही रिजुविनेशन होता है, जिसकी वजह से यू सी द स्किन कलर ऑल्सो इम्प्रूव्स विद दैट. ओके, एंड नेक्स्ट, so we were talking about different kind of polarities and different kind of handsets. So like this kind of a different handsets you will see, जो फेस के लिए यूज होता है तो स्मॉलर है, बॉडी के लिए यूज हो रहा है वो थोड़ा बिगर वर्जन है, एंड उससे भी बड़ा है. एंड RF सीरियसली इज वन मशीन, आई फील लाइक एवरीवन कैन हैव इट एंड यू कैन लिटरली ट्रीट एवरीथिंग फ्रॉम हेड टू टो. जैसे स्किन से रिलेटेड जो भी है, आप उसमें फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, जो फेशियल्स में कर रहे हो, नेक के लिए कर रहे हो, स्पेशली यू कैन हैव अ नेक ट्रीटमेंट. यू नो एजिंग साइंस फर्स्ट शोज ऑन द आईज and then shows on the neck area, right? So you can work specifically on the neck area, you can work on the crow's feet area. So similarly aging signs shows many other part of the body, right? We do see lot of cellulite developing, we do see lot of things on the body changes also. So you can do the RF treatment, like if you are doing the body services also in your salon or the clinic, you can do it, the treatment for the buttocks, you can do the treatment for the thighs, like cellulite के लिए आप treatment करते हो. So ये सारी चीजों के लिए, skin tightening के लिए ये काम करता है, और wonderful result you see that. And yes, obviously multiple sittings भी देना पड़ता है. Why do we need to select RF? क्यों करना चाहिए हम लोग को? Why it is like different than other treatment?
इसके पहले हम लोग एंटी एजिंग के रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता था उसमें माइक्रो करंट या फेरेटिक करंट यूज़ करते थे बहुत कॉमनली। फेरेटिक किसी ने एक्सपीरियंस किया अपने स्किन पे? सो हाउ डू यू फील दैट? इज इट अ इजी फीलिंग? वो अपने स्किन पे जब होता है तो ऐसे बहुत अच्छा कंफर्ट फीलिंग आता है क्या? नॉट रियली, राइट? करते हुए देखोगे तो आपको हंसी आएगा, लगता पूरा पैरालिसिस जैसा मसल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, राइट? यू सी द फेस कंप्लीटली गोइंग लाइक दैट वे। सो थोड़ा जो उसमें डिस्कम्फर्ट वाला थिंग था, इसमें यू डोंट फील एनीथिंग लाइक अ डिस्कम्फर्ट, ठीक है? सो लेस डिस्कम्फर्ट कंपेयर टू एनी अदर NSFL या और कोई भी नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट वाले जो भी मशीन्स है उसके हिसाब से, and results are very instant. You can see immediate difference, and today actually to show that I'll be doing it half side of the face first so that you guys can actually see the difference उनके face पे। and no down time, जितने अदर एंटी एजिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे में डाउन टाइम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रिकॉशंस ज़्यादा है, बाद में आपको 1 वीक तक ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लाइक यू नो यू कैन नॉट गो आउट इन द सन, यू कैन नॉट डू एनी अदर लाइक यू नो अदर ट्रीटमेंट्स, मशीन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, वैसे सब चीज़ें बहुत होती है। और ये लिटरली ये हाफ एन आवर में फिनिश होता है एंड यू डोंट हैव एनी सच डाउन टाइम इन दैट, ओके? लॉन्ग लास्टिंग, इफेक्टिव, एंड ऑब्वियसली हम लोग यंगर लुकिंग स्किन है बोल रहे हैं, सो व्हाई वी से पार्टी रेडी। जैसे मैंने कहा लंच टाइम फेशियल है, किसी क्लाइंट को कहीं बाहर जाना है एंड दे फील लाइक यू नो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बट आई वांट दैट कंप्लीट यंग लुकिंग स्किन, you can just do the cleansing toning. If you have no time, cleansing toning करके directly machine कीजिए, remove the product, apply your serum and do the day care and like ना moisturizer and sunscreen लगा दीजिए, you will make your client ready for that. Safe and FDA approved. So this is one of the treatment which is FDA also approved. Now how this works? कैसे काम करता है ये? जैसे मैंने कहा था कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स है वो हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करने की वजह से क्या होता है, there are some facts also written in that, that's like you know the passes about 2 centimeter into the fatty skin layer, and जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट करते ही वो वहाँ के सेल्स को एक्चुअली में डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से वो आप next whatever you do the massage or whatever you do the lymphatic drainage that moves from there and you see the new cells coming to the area and the cell rejuvenation happens, and because of the cell rejuvenation we see the skin looks better and younger, and जिसकी वजह से fat disbursement भी होता है because this is so deep it goes till your adipose tissue तक में, so adipose tissue तक उसका raise जा करके that's how it works and that's how it shows that fat is released, and double chin वगैरह पे भी आप काम कर रहे हो तो you will be able to see a nice facial contour on that. So this is what I was talking about, how the bipolar thing works. So जैसे मैंने कहा आपका power start हो रहा है machine का, and this part is the machine how the RF power goes and it works, and that side you have the active electrode. Active electrode में you will see we have two like you have multiple polars in this together. So this is what I was saying कि the first the energy goes positive and then उसमें ही negative turn होता है, so दोनों साथ में इसमें वर्क होता है उसमें इस मशीन में, so आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड और पैसिव इलेक्ट्रोड दोनों वहाँ ही सर्किट कंप्लीट कर रहा होता है जैसे। नेक्स्ट, so now what are the contraindication? This is most important thing. Contraindications हमें पता नहीं होगा तो precautions भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। So majorly what we are talking about, आपको ये मशीन यूज़ करते समय कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, so that हम लोग क्या जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। So these are few contraindications जो आप कोई भी मशीन जिसमें करंट पास हो रही है स्किन में वैसे टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो आई एम श्योर इसमें से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, बिकॉज दीज आर मोस्टली द कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है इसके पहले उन्होंने कोई नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट कराया है तो वो कब कराया है। जैसे सपोज कुछ बोटॉक्स है या फिर कुछ फिलर्स वगैरह कराया है तो वो कितने दिन पहले कराया है। सो मिनिमम 4 to 6 वीक्स का गैप होने के बाद यू कैन डू दिस, ठीक है। सो वो ये सब क्लाइंट कंसल्टेशन में आपको ज़रूरी है टू क्रॉस चेक द कॉन्ट्राइंडिकेशन।
कॉन्ट्राइंडिकेशन सारे होने के बाद में आप प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है कि प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए व्हाइल डूइंग दिस। हम कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, नाउ यू नो यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस। सो ये करते समय क्या प्रिकॉशंस ध्यान देना चाहिए उस समय। इंपॉर्टेंटली व्हाट वी नीड टू नो इज व्हेन वी यूज दिस मशीन तो कंडक्टिव जेल स्किन के ऊपर होना चाहिए हमेशा। एंड आपके क्लाइंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका हीट बेयरिंग कैपेसिटी भी आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप टॉकिंग टू योर क्लाइंट व्हाइल डूइंग इट सो दैट लाइक यू नो एक प्लेस में ज़्यादा देर रह गया तो हो सकता है स्किन बर्न करेगा एंड इट विल बॉदर देम। सो इसलिए बहुत ज़्यादा देर भी नहीं रखना है। सो दोज थिंग्स विल कम अंडर प्रिकॉशंस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी? सो जैसे मैंने अभी शुरू में बात किया था कि कहाँ करना है, क्यों करना है, सो नाउ यू नो द बेनिफिट्स भी क्या क्या है। सो इट हेल्प्स टू बूस्ट द इलास्टिन एंड कोलेजन ऑफ द स्किन, हेल्प्स टू टाइटन द स्किन, स्किन की सारी कॉन्टोर्स उसमें चेंज हो जाते हैं और इसके अलावा स्किन का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, सॉफ्ट लुकिंग। क्यों? आपका जब इलास्टिन कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है तो जो स्किन सैग होकर के जो आपका गैप आ रहा था वो गैप नहीं होकर के इट्स लुकिंग लाइक सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑल्सो। ओके, सो टेक्सचर चेंज हो जाता है, स्किन टोन चेंज हो जाता है। टेक्सचर व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इट इज, इट कैन बी कोर्स, रफ और सॉफ्ट। सो कोर्स एंड रफ इज अनयूजुअल, सॉफ्ट इज विच इज अ नॉर्मल स्किन का जो आपका टेक्सचर होता है वो। हम सब इतने ट्रीटमेंट्स क्यों करते हैं? बिकॉज द इंटेंशन क्या होता है कि लोगों को नॉर्मल स्किन जैसा स्किन चाहिए, सबको एक्सपेक्टेशन वही होता है ना, हमारी स्किन नॉर्मल होनी चाहिए, अच्छे से ग्लो होना चाहिए एंड ऑल। सो आपका टेक्सचर स्मूथ हो जाता है, यू सी द स्किन टोन चेंजिंग, सो हाइड्रेशन लेवल बेटर हो जाता है। सो ये सारी चीजें जो है यू सी द डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। जैसे मैंने कहा कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड प्रोग्राम्स हो सकते हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लिटरली कितने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं इसमें। completely like you know you can maybe customize for someone, you see someone's face and you feel like you know उनके overall face में सिर्फ this is the area which is like you know comparatively aging, the laugh line is very prominent, maybe the lip line is like drooped and all, maybe you can work only there and you can achieve बाकी का face पूरा जैसे लग रहा है वैसे आप उसको result दे सकते हो जैसे। So these are the different treatments what we can offer through the help of RF. So now we'll be starting with the procedure. किसी का कुछ question है अभी तक जो हमने किया उसमें, so we can talk about and same time I'll start. Cleansing toning is done. We need to do exfoliation also. मैम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में डायबिटीज था, Yes. तो अगर हम क्लाइंट का डायबिटीज लेवल इक्वल अगर हो तो कर सकते हैं? Yes, if it is under control definitely कर सकते हैं. So थैंक यू। डायबिटीज में क्यों नहीं करते हैं? डू यू नो दैट? बहुत सारे मशीन्स हम लोग डायबिटीज में नहीं करते, राइट? कोई बताएगा क्यों नहीं करते हैं डायबिटीज के टाइम पे हम लोग? सपोज समवन्स डायबिटीज इज हाई, वी नॉर्मली अवॉइड द मशीन्स, राइट? सो व्हाई डू वी डू दैट? ओके, एंड स्किन सेंसिटिविटी, करेक्ट। सो सेंसिटिविटी थोड़ी कंपैरेटिवली वीक हो सकती है उनकी, एंड देन हो सकता है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और ऑल ऑफ अ सडन उनको सेंसिटिविटी वहां पे आ गई तो भी करंट भी उनको ज्यादा फील हो सकता है। या यू कैन सेंड दैट गर्ल वेयर शी इज। हां, सो कैन वी डू एनी पील्स विद RF? अभी मुझे क्लेंजिंग टोनिंग कर लिए, हम कोई भी स्किन प्रोग्राम के पहले एक्सफोलिएशन करते हैं, राइट? एक्चुअली जैसे मैंने कहा सिर्फ मुझे ये मशीन करना होता है एज अ ट्रीटमेंट, मैं शायद एक्सफोलिएशन भी अवॉइड कर सकती थी, लेकिन अभी बिकॉज आई वांट टू शो यू गाइस थोड़ा रिजल्ट में फर्क, तो आई वुड लाइक टू डू द एक्सफोलिएशन, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन। सो स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन कर सकते हैं क्या हम लोग? इसके साथ कुछ पील्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, कोई बताएंगे? ओके, थोड़ा क्लोजर, बट और कोई कुछ और इससे डिफरेंट आंसर है किसी का?
सो अभी मैं फिलहाल जो एक्सफोलिएटर यूज कर रही हूँ वो AHA बेस्ड एक्सफोलिएटर है, बट बहुत माइल्ड है, इट्स लाइक अ टोनर. सो आई एम जस्ट वाइपिंग द स्किन विद दिस सो दैट आई डोंट टेक मच टाइम ऑल्सो, एंड एक जेंटल एक्सफोलिएशन होगा. ठीक है. सो या पील्स करने के लिए हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो पील्स कोई जेंटल पील्स है तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग पील्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है. सो पील्स करने के बाद स्किन थोड़ी ऐसे ही इरिटेट होती है, तो वैसे टाइम पे सपोज मैं पील्स करके अब RF करूंगी तो RF का जो हीट है दैट माइट बॉदर माय क्लाइंट स्किन. सो दैट्स द रीजन वी विल अवॉइड दैट, बट वी कुड डू एनी अदर वेरी जेंटल एक्सफोलिएटर. सो आपके पास कुछ विटामिन C बेस्ड एक्सफोलिएटर है या कोई भी ऐसा जेंटल सा एक्सफोलिएटर है जो एंजाइम बेस्ड है. डोंट गो फॉर वेरी हार्श एक्सफोलिएटर्स, but you can definitely go for the gentle exfoliators. But as I said, abhi filhal I'm just doing this like a toner. I wipe it off the skin and it helps to slightly gently exfoliate, and थोड़ा सा deep cleansing भी हो जाता है. Cleanser का कुछ residue रह गया तो वो भी निकल जाएगा. I'll leave this on skin for maybe 2 minutes and then wipe with the toner on the cotton. Any other question? किसी का और कुछ question है? ये डायरेक्टली मैंने कॉटन पे स्प्रे किया, स्प्रे फॉर्म में है, कॉटन पे डायरेक्टली स्प्रे किया मैंने. हाँ, हम डायरेक्ट फेस पे भी स्प्रे कर सकते हैं एंड लीव इट लाइक दैट, बट समटाइम्स क्लाइंट्स फील लिटिल अनकंफर्टेबल, वो आंख वाँख में जाने का डर होगा, तो इसलिए मैंने कॉटन पे लेके मैंने सिर्फ वाइप किया. अभी थोड़ी 1-2 मिनट के लिए छोड़ के आई वाइप विद द टोनर. सो yes, this is from CB Pro. So हमारा जो academy है and the products also, we are into the skincare products and also the academy also. I can't hear you, so let. RF ट्रीटमेंट में भी थर्मल बर्न हो सकता है. RF ट्रीटमेंट में थर्मल बर्न हो सकता है क्या? थर्मल बर्न हो सकता है इन केस आपका कंडक्टिव जेल स्किन पे वहाँ अराउंड नहीं है, या फिर आपने एक जगह पे ज़्यादा देर छोड़ दिया, ऐसा कुछ है तो. बिकॉज ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्किन पे जब तक उतना टेम्परेचर डेवलप नहीं करेगा वो रिजल्ट नहीं देगा, राइट. सो उतना टेम्परेचर डेवलप करना पड़ता है उसमें, बट ऑब्वियसली हम क्लाइंट को वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे नहीं कि उनको शुरू में ही स्किन के ऊपर में झटका लगेगा जैसे. सो वी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस दैट थिंग, बट अदरवाइज आप एक प्लेस पे रख दिए, सोचिए मूव नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है, बट कंडक्टिव जेल इनफ है और आप कर रहे हो तो इट्स नॉट डेंजरस. जैसे लेजर की तरह बहुत सारा जैसे बाद में एंड बिफोर आफ्टर लेजर में भी होता है ना. सो लेजर का जैसे स्किन में लेजर से भी यू डू वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोग्राम्स, बट व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स डार्कर स्किन को हो सकता है कुछ वाइट पैचेस आ जाए और लाइटर स्किन को कुछ बर्न पैचेस आ जाए. सो वैसे सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होता है. एंड इसको यूज करने के लिए जैसे मैंने कहा सिर्फ RF करना है, आप सिर्फ RF कर सकते हो या आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हो. इफ समवन इज कमिंग फॉर द कंप्लीट फेशियल, आप क्लेंजिंग टोनिंग करके, इसमें हाइड्रा है तो आप हाइड्रा से एक्सफोलिएट कर सकते हो. एक्सफोलिएशन होने के बाद में आप उसमें RF करो, या फिर आपको बीच में सपोज कि कोई एक्सट्रैक्शन भी है, आपके पास सोनिक पीलर है उसमें, सो सोनिक पीलर से आप एक्सफोलिएशन का प्रोग्राम कर सकते हो. एंड वो होने के बाद में आप उसको क्लीन करके यू कैन गो फॉर RF हो गया, वो हम कंडक्टिव जेल हटा दिए स्किन के ऊपर से. देन वी विल गो फॉर द पेनिट्रेशन विथ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड होने के बाद यू वांट टू मसाज, हैंड मसाज करना है आपको, हैंड मसाज करेंगे, फिर मास्क लेके आप LED मास्क यूज कर सकते हो. सो कंप्लीट सारे चीजें एक साथ भी कर सकते हो, देयर इज नो हार्म, बट इट्स गुड 1.5 आवर का प्रोग्राम होता है. आपके क्लाइंटल वैसे हैं so you can definitely do that way. So now I'll be just cleaning this product with the toner. This product, yeah, it's just like good 3 minutes is enough. And this is not just for exfoliation, this gives instantly
नाइस प्लम्पिंग इफेक्ट ऑन द स्किन, ऐसे इंस्टेंटली ऐसा लगेगा जो हमारा डिहाइड्रेशन और एजिंग का साइन था वो सब भी गया जैसे, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली एक्सफोलिएट करते हैं हम स्किन को तो यू सी द स्किन गोज लिटिल मोर डिहाइड्रेटेड बिकॉज सरफेस पे से वो प्रोडक्ट हटाने के बाद में और भी ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड लगता है, बट इस एक्सफोलिएटर से इट्स नॉट like that way. That's why I have chosen this particular exfoliator because we are working today for anti-aging program. या क्योंकि RF कर रहे हैं ना हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी, सो इट वर्क्स ऑन इलास्टिन कोलेजन बूस्टिंग अप एंड ऑल. सो जो भी एजिंग साइंस देखते हो यू विल सी कि वो सब में आप डिफरेंस देखते हैं. आज हम लोग जैसे बात कर रहे थे, दिस इज समथिंग टू ब्यूटिफुली एज और ग्रेसफुली एज. दिस प्रोग्राम इज वंडरफुल लाइक दैट. So as I said, what we can do is maybe I can add little of conductive gel. You might use the same जो आपको machines के साथ में दिया जाता है वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो. सो मैंने एलोवेरा जेल जो है पूरे फेस पे पहले से मत लगा के रखिए, जस्ट पुट इट ऑन द स्पॉट बिकॉज रख सकते हैं लगा के भी, बट बाय द टाइम आई विल गो टू द नेक्स्ट एरिया दिस माइट ड्राई. सो इट्स बेटर दैट हम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं या फिर हाफ फेस पे लगा के पहले हाफ फेस कवर कीजिए देन गो टू द नेक्स्ट साइड. अच्छा, ये मशीन में आपके पास साथ में सोचिए माइक्रोडर्मा भी है. कैन वी डू दैट? माइक्रोडर्मा कर लें हम लोग इसके साथ साथ. शुड वी डू माइक्रोडर्मा एक्सफोलिएशन इसके साथ एंड देन हम लोग RF करें? Only RF. As I said, don't go for any harsh exfoliation. So microderma is not a gentle exfoliator, right? So sometimes like you know वो उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स जो होता है वो स्किन को थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करता है, एंड सम स्किन यू सी some small redness and sensitivity also. So that is the time if you are doing the RF, that heat might irritate the skin. So ideally हम लोग ऐसे harsh exfoliators को avoid करेंगे फिर. ओके, एनीवन यूजिंग एनी सिमिलर थिंग ऑफ ऐसे मशीन्स में कुछ यूज कर रहे हो आप लोग? यू हैव एनी अदर कंसर्न्स? जो एजिंग स्किन में कोई फेशियल्स कर रहे हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आई कैन हेल्प मे बी फॉर दैट. Sorry, he's getting mic. Wait, I'm not able to hear you totally, completely. So what's the difference between Hydra facial machine and this RF thing? So basically, Hydra facial machine, when you're talking about, it's not just Hydra. Nowadays, in the Hydra facial, they do have multiple things. So in that, you might have seen RF also is there, but you do get individual Hydra also, individual RF also. Hydra is only the one which is in the behind. You see that in the bottle there is like you know something liquid, maybe some serums they call it, maybe with salicylic or maybe with AHA or anything like that way, and you do it like a vacuum, right? So that's for better for a deep pore cleansing and all. But उसमें ही साथ में attached RF आ सकता है, और otherwise RF can be a individual machine also. So in case anyone wants to see that later, Dermacell has got their counter also here in the, they have the stall. C2C. Sorry. C22C, okay. So C22C is the stall number, but they do have individual RF also. And they do have the RF like this way also, and जो portable वाला Hydra machine आ रहा है, so in that also there is RF, so वैसा भी है. But this is like you know इसका best part ऐसे है कि इसमें directly trolley है,
सो यू कैन मूव इट इजीली, कहीं पे भी लेके जाना है, दूसरे रूम में चेंज करना है, कुछ भी है तो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, आपको फिर दूसरा डेस्क या वहाँ पे ट्रॉली की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली यू कैन मूव इट टू एनी ऑफ द रूम. इफ यू हैव डिफरेंट फेशियल रूम यू कैन मूव आफ्टर वन क्लाइंट टू अदर क्लाइंट, ये मूव कर सकते हैं. एंड उसमें ही ट्रॉली होने की वजह से वो ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है. So you are doing RF or Hydra, anything? Which one is better is what I was. Okay, but I feel it's too much in now because wherever we are doing any seminars or anything, everyone ask about Hydra सिखा रहे क्या, and we do have like Insta live वगैरह भी करते थे हम लोग, तभी भी सबका बोलना होता था कि मैम हम लोगों को Hydra facial देखना है, सीखना है. Yeah, so basically Hydra का मतलब ये है, they want everything together, क्योंकि Hydra machine means like it has got RF, it has got ultrasonic, it has got sonic peeler, everything together उसके साथ में जैसे. But it's very much in, अब people are not in the galvanic and ultrasound, people want थोड़ा advanced कुछ next level, और हमें भी तो करने को मज़ा आना चाहिए ना, कुछ नया करेंगे तो हमें भी करने को मज़ा आना How चाहिए. much should it be ideally cost? Like how much should it be? Like a facial charges, price for this, prices, maybe okay, Hydra very good question. So it depends on the rest of the things. जैसे facials we know there are salon who is offering in 1000 also, there are salon in 5000 also, but I will suggest if you are doing something like this fancy machine and when you are doing everything kind of a thing together, you can charge anywhere around 5000. So 5000 you can keep it like a ticket cost, and then these things works wonderful when we are doing it like a sittings. उसको मल्टीपल सिटिंग्स में कर रहे हो तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो क्लाइंट्स के लिए यू कैन मेक अ पैकेज, यू कैन मेक अ पैकेज ऑफ लाइक 5+1 or something like that way. So around 6 settings are kind of enough. 6 sittings will be wonderful result it will give. Okay. Before that it will not be so much difference. Like any facial के बाद जितना result मिलता है they will see definitely the difference, but a nice difference if you want to show that, that's like a 5 to 6 sittings. Thank you. Yes, nice question. So you can do it weekly once when you are not incorporating with any other peels or anything. Just the RF you can do weekly once. So if you are doing it with gentle peels or something, then maybe fortnightly then. Very true. Very true. The results are always, you will see like better and efficient of your treatments what you are doing it if the clients are doing the home care. Without the home care आप कितना अच्छा भी प्रोग्राम कर रहे हो, कितने अच्छे प्रोडक्ट भी लगा रहे हो, तो obviously you don't see the same results. It's not like हमें भूख लगती है तो डेली खाना खाते, right? It's not that weekly once we'll party and we'll not eat rest of the days. Doesn't work like that. So it's like that कि every day जैसे food is important, the food for skin is also important. So home care is equally important, and RF वगैरह कर रहे हैं तो आपका treatment orientation क्या है देखिए, उसके हिसाब से you can definitely suggest the home care for them. Yes ma'am. So 6 sittings के बाद you can do it like a monthly facial. हर facial में भी आप RF करेंगे ताकि वो maintain करके रख सके जैसे आप. Skin, हाँ, या क्या सिमिलरिटी है? RF here is you are doing it for the more of a toning of the muscles and collagen elastin boost up के लिए. Skin cautery was like when you want to remove something और वैसे चीजों के लिए यूज करते हो. Sorry? हाँ, बट उसमें क्या है वो इंग्रेडिएंट देख लीजिए आप कि वो सपोज कि जेल में जैसे गैल्वेनिक में कैसे होता है पॉजिटिव जेल और नेगेटिव जेल, वैसा आपके पास में पॉजिटिव जेल है आप यूज कर सकते हो. एनी जेल फॉर्म जो सीविड जेली भी यूज कर सकते हैं, बट वो स्किन के ऊपर होना चाहिए. सीविड भी कंडक्टिव जेल की तरह काम करता है. यस, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं, मैं एलो के ऊपर अभी आरएफ करना स्टार्ट करूंगी तो इसके लिए, बट वी आर वेटिंग फॉर द मशीन कनेक्शन के लिए, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है. सो
उसके लिए वेट कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। तो उसका ड्यूरेशन कम रहेगा, आरएफ करेंगे फेशियल के साथ? आरएफ हम लोग अराउंड 10 मिनट्स के अंदर, 10 to 15 मिनट्स मैक्स हो जाता है पूरा फेस नेक कवर करके। तो आप फेशियल के साथ कर रहे हो तो भी उतना ही टाइम लगेगा, बट फेशियल में सारी चीज़ें होती है तो इसलिए पूरा 1 घंटा क्रॉस कर जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम लोग सिर्फ आरएफ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा विद इन हाफ एन आवर आपका क्लेंजिंग टोनिंग हो जाता है। आपको जेंटल एक्सफोलिएटर, जैसे अभी मैंने वो क्विकली वाइप कर दिया तो इट डजंट टेक मोर देन 3-4 मिनट्स, राइट। तो वैसे करके हाफ एन आवर में यू कैन डू द आरएफ। एंड वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मुझे मास्क लगाना है, पैपर करना है मेरे क्लाइंट्स को, डिपेंड्स आप उतना टाइम दे रहे हो और इफ़ योर क्लाइंट इज ओके टू पे एवरी सिटिंग दैट मच यू कैन डू दैट। यू सेड समथिंग। हाँ, लगा के हम लोग को करना है। अभी सपोज इफ इट गेट्स ड्राई आई विल री अप्लाई। वो जहाँ पे हम कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट होनी चाहिए स्किन पे, हम नेकेड स्किन पे नहीं करेंगे। The best thing is stop it there and just do the cold compress. Cold compress is like जितना हो सके cold compress। वो भी cold compress कैसे कि in the ice water dip the cotton, जैसे हम like पट्टी लगाते हैं ना, ठंडी पट्टी लगाते हैं, just like that way. So that is like every minute you change it. Dip किया, compress किया, that takes the heat of the skin, then re-dip it and redo that. So do it for good 5-6 minutes तक। No, very very gentle, and that is also like by mistake, suppose कि if we don't move or because of any reason, so suppose वहाँ ज़्यादा देर रह गया, so then it happens, otherwise it's all, everything is in our control. There is the intensity button, so normally more than 4-5 we don't go, so it goes like 10, 12, 17 also, but 4-5 से ज़्यादा लेके start नहीं करते। एक बार client comfort हो गया, then we can go for 6 or 8, that's it. How do we decide? Sorry, I didn't understand. Good machine, okay. That is like a very big question actually, because everyone will claim that their machine is the best machine. So, but when you learnt anything, you can try and test physically everything. And when you see, like there are so many RF, which is portable and instant also, you know, कि people do it घर पे भी. Right, so then they feel like अरे मैं तो घर पे कर रही हूँ, why do I need to come there? But obviously घर पे जो कर रहे हैं उस पे और प्रोफेशनल वाले में डिफरेंस होता है। सो हीट जनरेट करने के लिए ये इंस्टेंटली हीट जनरेट करता है। दैट इज समथिंग लाइक इतना ही हीट जनरेट करता है विच पीपल विल नॉट बर्न देयर स्किन, बिकॉज वहाँ पे इंटेंसिटी कंट्रोल इतनी नहीं होती है, बिकॉज दैट्स फॉर रिटेल पर्पज के लिए। यहाँ पे प्रोफेशनल पर्पज के लिए तो each skin how much heat it can take. If you see the skin is thin and delicate, you keep it less. So you can test and try. Microcurrent we used to work specifically on areas, and then in that again it's not just about the heat generation. Comparatively this goes deeper. With the heat generation and cellular rejuvenation, this goes deeper. Sheet mask का cold compression is good when you are doing it for complete face. Suppose instantly कोई sensitivity है and आप उसके लिए cold compress कर रहे हो तो sheet mask भी नहीं help करेगा, क्योंकि कैसा है कि उस वक्त कैसा multiple compression की ज़रूरत होती है उनको। तो आप ना हर 1 मिनट में उसको पट्टी चेंज करते हो। जैसे बुखार आया किसी को तो आप कैसे थोड़ी थोड़ी देर में पट्टी चेंज करते हो, वैसे ही ये कॉटन डिप करके आइस वाटर में आप लगाते हो। आइस डायरेक्टली मत लगाना, वो क्लाइंट बेयर नहीं कर पाता है और अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेगा, तो वो वहाँ पे वो सेम रिजल्ट नहीं देता। जबकि आप आइस के पानी में कॉटन लेके आप डिप कर रहे हो, निकाल रहे हो, फिर डिप कर रहे हो, लगा रहे हो, दैट इज लाइक अ बेटर वे ऑफ डूइंग द कोल्ड कंप्रेशन। उसके बाद यू वांट टू डू, यू कैन डू द शीट मास्क, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फॉर ऑल ओवर द फेस, बट ये स्पेसिफिक एरिया में जब करना है तो बेटर टू डू विद द कॉटन कंप्रेसर। हाँ जी, sorry for the inconvenience, थोड़ा like we can, yeah, because the purpose is too different. So LED mask purpose is like it gives the finishing result. So whatever the mask you are using it with, that you can use this
that is like, you know, for the end result, like you want to relax the client and all. So only thing is we have to just cross check that client is not a claustrophobic, so then we can use that, that's it. सॉरी, आई के साइड करते हैं तो नहीं, तो हम इन केस आप अपने क्लाइंट को पहली बार कर रहे हैं, सोचिए फेस के ऊपर, सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ योर क्लाइंट हैज नॉट एक्सपीरियंस दिस बिफोर, देन यू कैन एक्चुअली मेक देम फील एक्सपीरियंस ऑन देयर हैंड पहले, एंड देन उसके बाद आप उनको फेस पे करेंगे, ठीक है. हाँ ठीक है, या सो वेरी स्लाइट प्रिकी सेंसेशन और वार्मथ दोनों फील होगा, ठीक है. सो कैन यू फील प्रिकी सेंसेशन भी आ रहा है? इज इट फाइन, कंफर्टेबल है ना? और इसमें ही आपका स्विच है, एनी टाइम क्लाइंट फील्स अनकंफर्टेबल तुरंत आप उसको ऑफ कर सकते हो. इंटेंसिटी वहाँ से सेट है, बट अनकंफर्टेबल लग रहा है क्लाइंट को या कुछ भी ऐसा लगता है आपको, या प्रोडक्ट जेल लेना है, यू कैन पुट इट ऑफ, ठीक है. और इसमें दो मोड रहेंगे, एक जो है कंटिन्यूस है और एक पल्सेटिंग है, जैसे बाकी सब में भी होता है ना वैसे ही. तो कंटिन्यूस में क्या है, इसमें करंट डायरेक्टली ऑन है, और दूसरा जब यूज करूंगी तो व्हेन आई पुट इट ऑन द स्किन तभी वो करंट साथ में आएगा करके, ठीक है. सो आई स्टार्ट. सो आप कोई भी मशीन स्टार्ट करते हो, पहली बार जब क्लाइंट के स्किन पे कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम देयर चीक्स, बिकॉज थोड़ा टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, उनको करंट फट से ऐसा कुछ फील नहीं होगा, एंड उनको कंफर्ट हो जाएगा. देन यू कैन गो ऑन द नेक एंड देन रेस्ट ऑफ द एरिया. सो नाउ आई विल गो डाउन इन द नेक, एंड देन यहाँ कर रही हूँ तो नॉर्मली सारे मशीन्स की तरह इसको भी राउंड लेना है, बट व्हेन यू गो अप पुट अ स्लाइट प्रेशर, और ऐसे भी नहीं कि मैं यहाँ से ऐसे 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 करके सीधा इतना फास्ट चल जाऊंगी. The moment I'll go this fast, वहाँ पे कुछ हीट जनरेट ही नहीं होगा. So I have to go very slow so that वो वहाँ पे हीट समझ में आएगा उनको. और जैसे मैं ऐसे ऊपर जा रही हूँ ना, तो थोड़ा प्रेशर लूँगी, जिस तरह से ऐसे. कैन यू सी द लिफ्ट ऑफ द स्किन? सो यू कैन लिफ्ट द स्किन ऑल्सो स्लाइटली विथ योर मशीन, ठीक है. सो आई विल कवर इट ऑन द नेक. आर यू कंफर्टेबल? If you are okay, I can increase the intensity, or if you think warmth enough है, but बढ़ा सकती हूँ या ठीक है, ये बढ़ा सकती हूँ. So yeah, अभी हमने 5 में रखा है. So मैंने स्टार्ट किया था 4 में, थोड़ा सा क्लाइंट कंफर्ट हो जाए तो हम 5-6 भी कर सकते हैं. और जैसे पहली सिटिंग है तो बहुत ज़्यादा करके हम लोगों को उनके कंफर्ट जोन तक लेके जाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे. और जैसे मैंने कहा बहुत स्लो जाएंगे. इन दिस मशीन देयर इज 20 ना, 20 तक है, बट 20 इज काइंड ऑफ टू मच. सॉरी, भाई बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है. 10 के बाद ही बहुत ज़्यादा लगने लगता है. सो हम फेशियल कॉन्टूर को समझते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. जैसे अभी नाउ जॉ लाइन के लिए एवरीथिंग आई विल ट्राई टू टक इन टूवर्ड्स द ईयरलोब. सो ऐसे लगता है जैसे आप मसल टाइटनिंग के लिए उसको यहाँ से पूरा ले जा करके यहाँ फिक्स कर रहे हो. Are you feeling good heat? Anytime uncomfortable, tell me, huh? And that slight vibration kind of a thing is bothering you? Yeah, ठीक है.
एक हल्का प्रिकी सा फील होता है। जैसे गैल्वेनिक करते समय किसी के मेटल इम्प्लांट्स हो तो उस जगह ज़्यादा फील होता है, थोड़ा इसमें भी फील होता है। सो दैट्स वाई सेम वे आप अपने क्लाइंट को वेट कॉटन रख सकते हैं। Each area just do kind of a 3 circles and you know you covered, then move, and every line should be overlapping. एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जैसे आप लिफ्ट के लिए कर रहे हो तो जॉ लाइन से नेक का सारा चीज़ हम ईयर लोब के पीछे टक कर रहे थे। सो अभी क्या करेंगे, हम लोग सारे लाइंस को टेम्पल के साइड में जाएंगे। वी विल ट्राई टू एंड आवर स्ट्रोक्स टूवर्ड्स द टेम्पल। ये आप रेगुलर स्ट्रोक्स होने के बाद स्पेसिफिक लाइंस पे काम कर सकते हो जहाँ आपको लगता है ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को। एवरी टाइम you lift it up. बहुत फास्ट करेंगे तो भी वहाँ पे हीट जनरेट नहीं हो पाएगा एंड हम लोग पता चला उसके पहले ही वहाँ से मशीन मूव कर दे रहे हैं। सो गो स्लो एंड ईच एरिया डू इट माई लाइक अ 3 circles, देन शिफ्ट। पहले क्रोस फीट और फिर फोरहेड के लिए काम करते समय हम ऊपर जाएंगे विद द प्रेशर। एंड व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द आई एरिया, आई लिड पे हम काम नहीं करते हैं बट जस्ट ब्रोज को ऐसे उठा करके करेंगे। सो वाइल डूइंग इट यू जस्ट लिफ्ट इट लाइक दिस। आर यू फीलिंग मोर करंट ऑन द फोरहेड? ऐसे मैं कम करूँ क्या, या सिर्फ आईज के पास लग रहा है ज़्यादा? आई के पास ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आई विल अवॉइड दैट एरिया। फोरहेड पे ठीक है या फोरहेड पे भी कम करूँ? ठीक है, आई जस्ट गो फॉर आईब्रोज पे। या और एक चीज़ हो सकता है, कभी क्लाइंट ने रिसेंटली आईब्रोज किया होगा तो भी वहाँ पे करंट थोड़ा ज़्यादा फील होगा। सो आप वो थिन एरिया या तो अवॉइड कर दो। बहुत इजी एंड सेफ है। जैसे फेरेडिक करने के लिए हम लोग को मसल्स इंसर्शन, ओरिजिन सब पता होना चाहिए था और वैसे हम लोग को अकॉर्डिंगली काम करना है। और आप मशीन उठाते समय यू हैव टू वेट, फिर वो रेस्टिंग पीरियड में आप लिफ्ट करोगे और फिर से प्लेस करोगे। इसमें ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, नाउ फ्यू स्ट्रोक्स आई वुड लाइक टू जस्ट शो ऐसे ही। सपोज लाफ लाइन पे आपको काम करना है, सो यू कम लाइक दिस very gently and then from here go and tuck towards the temple. So you give a nice
लिफ्ट लिटरली ऐसे. व्हाट इज द स्ट्रोक आई एम डूइंग इट? कम फ्रॉम हियर स्ट्रेट एंड चिकबोन से नीचे जाके टेम्पल में प्रेस कर रहे हैं. ये एक. और दूसरा चिन से, वी से चिन टू टेम्पल. Chin to temple, you come here and then earlobe to temple. When you do earlobe to temple also, you give a nice lift और jawline पूरा defined लगता है उसकी वजह से. आप comfortable नहीं होगे तो lift your hand, हाँ, I will know at least. You think ज़्यादा लग रहा है क्या? Should I put more of a halo? Or it's fine? Sorry? नहीं बड़ा है. कर सकते हैं आप स्पेसिफिकली जिस साइड आपको लग रहा है ज़्यादा रिक्वायर्ड है, टेक मोर स्ट्रोक्स. आप इस साइड 3 कर रहे हैं तो उस साइड 5 कीजिए, लाइक दैट वे, सो दैट यू ट्राई टू बैलेंस इट. किसी को दिख रहा है मसल मूव होता हुआ? वहाँ तक नहीं दिख रहा होगा ना? इट्स टू मच हीट आई थिंक नाउ. मैं कम करूँ अभी थोड़ा, या प्रोडक्ट और लगाऊंगी तो आप बर्दाश्त कर सकोगे? जेल और अप्लाई करो. वही जेल और लगाऊंगी तो बेयर, मतलब यू कैन बेयर इट. सो यू वांट टू डू दिस, और मैं रिड्यूस कर दूँ, थोड़ा सा कम करूँ, एक लेवल और कम करूँ, या एंड आई विल पुट लिटिल मोर जेल सो दैट यू विल नॉट फील सो मच. Yeah, that's it. I think few more strokes I'll do this side, then वहाँ करेंगे. Now I feel like मुझे neck पे थोड़ा और focus करना है. When I see her face, rest of the face में और neck पे. How many of you find this interesting? You people feel like you want to introduce something like this in your salon or clinic? Yeah? Yes, not just anti-aging. It is like photo aging जो होता है ना, anti-aging means what? It's not like कि literally जो 50 plus वाले clients को ही करना है. Suppose 35 में भी कोई clients जो है ज़्यादा उनका field job है और उनको बाहर जाने का, धूप में जाने का आदत है, आप उनके स्किन में premature aging signs देखोगे. So premature aging signs में भी you can do it and you will see a wonderful result for them. कर सकते हैं क्योंकि आप उनको ट्रीटमेंट जैसे नहीं कर रहे हो ना. वंस इन अ वाइल यू कैन डू इट फॉर एनीवन. लाइक आप अपने फेशियल में करते हो तो आपका फेशियल का रिजल्ट और अच्छा होता है फिर. सो फेशियल में ही सपोज यू फील लाइक स्किन टाइटनिंग भी दिखना चाहिए, डू इट विद द RF. एक सिटिंग में तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है ना, बट यू विल बी एबल टू गिव अ गुड रिजल्ट ऑफ योर फेशियल. Before I'll do that side, I want to show, compare करके आपको, so that you guys can see the difference. I'll just wipe the product from here and then we'll complete other side for her.
कैन यू फोकस द कैमरा ऑन हर फेस? कर सकते हैं क्या जूम? नहीं तो आई हैव टू मेक हर सिट. नॉट पॉसिबल? ठीक है. इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट सिट एक बार. I just want you guys to observe the difference between that side and this side. Do you see the cheekbone and ये जो यहाँ पे plumping effect दिख रहा है उनके स्किन में? एंड हमने कोई स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन नहीं किया कि पूरा स्किन लाइटनिंग हो जाए, या फिर कोई और बहुत बड़ा हमने प्रोडक्ट्स लगा करके कुछ और फेशियल मसाज वगैरह भी नहीं किया. जस्ट आरएफ का रिजल्ट आप देख सकते हो, इस साइड और उस साइड का डिफरेंस. आई जस्ट वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व. इसके लिए मैंने हाफ में एक्चुअली स्टॉप किया. यू सी द जॉ लाइन, कंपेयर ईच एरिया. जॉ लाइन देखिए, फिर चीक बोन देखिए, पूरा ये वाला फेस कॉन्टोर ऐसा लग रहा है ना, यहाँ से शेप ही चेंज हो गया है फेस का करके. And the laugh line also you see it's kind of fuller. Can we continue? Lie down. You can finish that side. इनफैक्ट जब आप पहली बार अपने क्लाइंट के फेस पे कर रहे होंगे ना, प्लीज़ डू एक्चुअली हाफ ऑफ द फेस. उनको भी वो विश्वास दिलाने के लिए कि ये मशीन काम करता है और रिज़ल्ट आता है, एक हाफ कीजिए, शो देम द रिज़ल्ट मिरर से, वहीं पे उनको दिखाइए रूम में, एंड देन कंटिन्यू द सेकेंड हाफ ऑफ द फेस, सो दैट दे विल फील आप जो कर रहे हो वो सच में वैल्यूबल है करके. क्योंकि फेशियल कंप्लीट होने के बाद बहुत कम रिजल्ट पता चलता है लोगों को. हेयर कलर कराते हैं, फट से पता चलता है, मेकअप में फट से रिजल्ट पता चलता है, एंड दे फील लाइक वाओ करके. बट वो स्किन में जो है ना, वो एक्चुअली नज़रिया होता है, वो हम जैसे जानते हैं वो तुरंत नहीं पहचान सकते. उनको सिर्फ एक ग्लो समझ में आता है, बट ग्लो ऑल्सो इज व्हाट दे एक्सपेक्ट. स्किन लाइटनिंग हो जानी चाहिए, बट ये स्किन हेल्दी जो लुक आती है वो समझ में जल्दी नहीं आता है लोगों को. या हाउ लॉन्ग इट विल स्टे? द रिज़ल्ट लास्ट, एक सिटिंग जो कर रहे हैं आप, इट लास्ट फॉर गुड 1 वीक. बट वो आप जब ट्रीटमेंट में करते हो ना, तो कंटिन्यूस करते हो तो वो ज़्यादा, जैसे उसको रिजल्ट फिर ज़ीरो होने के पहले आप नेक्स्ट सिटिंग कर रहे हो, सो दैट यू सी द डिफरेंस, लाइक यू नो एवरी सिटिंग व्हेन यू सी दैट, डू दैट, देन यू विल सी द रिजल्ट लास्टिंग फॉर कंपेरेटिवली लॉन्गर. If you're doing just RF, it's 1 week. If you're adding with some other program या थोड़ा एक माइल्ड पील्स के साथ कर रहे हो, सपोज कि आपको चाहिए कि आप साथ में कुछ माइल्ड लैक्टिक या ग्लाइकोलिक भी करना चाहते हो साथ में, देन 15 डेज में एक बार. So that is it. Yeah, so then we will check with them, and they have to be stopping that, like you know, anything like kind of minimum 3-4 weeks they should be stopping that, and then we can start with this program. नो रेटिनोइड वीकली वो वाला माइल्डर होता है, जनरली 1% ऐसा सभी रहता है. सो इट्स लाइक यू नो 1 वीक का डिफरेंस है तो भी इट्स गुड एनफ. विटामिन सी इज फाइन. That is fine. It's like anything which is going to be peeling kind of a thing shouldn't be used, because that makes skin sensitive. So that's why we should be avoiding that, because this is, as I said, because of the heat, nothing else. This generates so much heat, so that might inflame the skin again. इसलिए shall I continue?
कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, आई कैन आंसर। मशीन वैक्यूम सेक्शन का भी काम करता है। वैक्यूम सेक्शन का काम जो करता है वो हाइड्रा करता है। हाइड्रा में लिटरली वैक्यूम सेक्शन के जैसा ही काम करने का कॉन्सेप्ट है उसमें, बट उसमें विद द वाटर वी डू, so that's why it helps to our better cleaning. Vacuum is only for her question is vacuum suction की तरह काम करता है क्या करके, so vacuum suction की तरह जो है हाइड्रा हमारा काम करता है। so वैक्यूम सक्शन और हाइड्रा में डिफरेंस यही है कि हाइड्रा में विथ वाटर व्हेन यू आर डूइंग इट इज हेल्पिंग टू क्लीन द पोर्स बेटर, और वैक्यूम सक्शन इज लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए इट इज गुड, बट पोर्स में इतना इफेक्टिव नहीं होता था, और उल्टा आप सिर्फ उसमें ग्रीजी सब्सटेंस लगाते थे क्योंकि वो ड्राइड होना चाहिए था जिसे करके। सो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, आप विद द हेल्प ऑफ वाटर कर रहे हो। If you guys observe every step what I am doing it, I am now trying to tuck it behind the ear, because जैसे हमने मसल्स के बारे में पढ़ा होगा तो प्लेटिज्मा एंड द स्टर्नोक्लिटोमास्टॉइड जो आपके नेक के मसल्स है वो सब आप टर्न करते हो, इट एंड्स लाइक दिस, राइट? सो लाइक दैट वे आई एम ट्राइंग टू टेक इट सो दैट इट गिव्स लिटिल बेटर लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग इफेक्ट। आई एम श्योर मैं ओरिजिन की तरफ जा रही हूँ तो आपको ज़्यादा फील हो रहा होगा, राइट? ऊपर की तरफ जाने से आपको ज़्यादा फील हो रहा होगा ना उसका वाइब्रेशन, लेकिन बेटर है। फेशियल हम लोग कितना अच्छा भी मैनुअल फेशियल करें, बट मशीन्स हम लोग को बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट? मुझे तो मशीन्स के साथ में इतना मजा आता है कि नॉर्मल क्लेंजिंग भी है, मैं सोचती हूँ कि बेटर आई यूज ब्रशिंग यूनिट, क्लेंजर लगा दिया एंड देन आई डू दैट। मे बी एक्सफोलिएटर के लिए आई यूज सम अदर मशीन, अल्ट्रासोनिक का भी जो सोनिक पीलर है दैट गोज वंडरफुल। आप कोई भी तरह के एक्सफोलिएटर्स लगा रहे हो, सोचो कोई एंजाइम बेस्ड एक्सफोलिएटर है और जेल बेस्ड एक्सफोलिएटर है, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द स्किन एंड मे बी यूज द सोनिक पीलर विद दैट। Comfortable? And not just that, when we work on these machines, no, facial contours जब आप देखते हो, literally आपने ऑब्जर्व किया होगा विद द एज हमारी लिप्स भी थोड़ी श्रिंक होती है, राइट? यू सी विद दिस मशीन एक्चुअली जब हम करते हैं अराउंड द लिप्स जाते हैं ना, यू सी दैट लिप्स में भी ऐसे प्लम्पिंग इफेक्ट दिखता है, विच इज अमेजिंग। आई नीड लिटिल मोर प्रोडक्ट, वो पास करो ना थोड़ा, हाँ थोड़ा सा जस्ट। Yeah. सीजन टाइम में आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता होगा एकदम डिटेल फेशियल करने के लिए। ब्राइड्स की मॉम आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपको फेशियल करने के लिए, लेकिन अच्छा फेशियल ना करो तो मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। आप आराम से समथिंग लाइक दिस हाफ एन आवर में कर सकते हो। क्लेंजिंग टोनिंग करके आपने आरएफ किया, सीरम लगा दिया और आपने मॉइस्चराइजर लगा के फर्दर यू कैन स्टार्ट विद द मेकअप।
सो सपोज उन्होंने पहले भी नहीं कराया होगा, एनी अदर क्लाइंट हु कम्स टू यू फॉर मेकअप एंड यू फाइंड इट द स्किन इज नॉट लुकिंग सो ग्रेट कि वो मेकअप लेगा, क्योंकि स्किन हेल्दी नहीं होता है तो क्या होता है, योर फाउंडेशन डजंट गेट ब्लेंडेड वेल एंड वो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही over the skin the product looks like too much जैसे. So you do a quick facial something like this and then you can actually do your makeup also. इसमें ऐसा जैसे मैंने कहा ना, कोई डाउन टाइम नहीं है कि इसके बाद मेकअप नहीं कर सकते वाला सीन नहीं है. When you will be doing it, सामने से you will see ऐसे फ्लिकर होता रहता है, पूरा मसल से धीरे 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 फ्लिकर होता हुआ दिखेगा आपको. So it depends if you have time. इसके बाद ये क्लीन करके you can do a massage or you can do a mask or anything. इसके बाद होम केयर में give them compulsorily good moisturizers and sunscreens, and night care में भी also like give the good night cream with something like the ingredients which works for according to their skin type and the condition. There are so many multiple of ingredients which works good for aging skins, to give a nice hydration, to give a boost for collagen elastin production. So we'll end up the session now. We'll clean the face. But किसी का कुछ questions है तो I can still answer, please. You can ask your question. Now as I said, अभी मैं इसके ऊपर मेरे पास में विटामिन सी सीरम है, तो मैं सीरम लगा के उनको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगा दूंगी. In meanwhile, I can answer to your questions. Do you guys see the brightness also on her skin? Acha, anyone has got any query for this machine? You can check with them on the counter also. And यहाँ exhibition cost में there is some discounted price for these machines. So please do visit the stall of them, the muscle. You will know the discounts also, and more than the discount, I want you guys to go and experience. अपने हाथ पे भी feel करो, just feel करो कैसा है. You can decide any time whether you want to or you don't want to. This particular machine has got 70,000, but यहाँ पे 62, 50, 58. अच्छा, okay, that's great. So यहाँ exhibition cost is less for, so it's like 58,000 something they're doing it. But the service and thing is really good. So जो भी है, like बाद में भी वो बहुत help करते हैं. Service अच्छा है डर्मासेल का.
उस हिसाब से। एंड एज आई सेड, आपको लेना है नहीं है वो आपका चॉइस है, बट प्लीज एक्सपीरियंस अपने हाथ पे, बिकॉज मैं यहाँ सबको स्टेज पे बुला के एक्सपीरियंस नहीं करा सकती हूँ, बट एक बार फील करो वो कैसा फील होता है आपके स्किन के ऊपर में। Last, I'll just tone the skin and then after, like before the moisturizer and thing, आप स्किन को एक बार टोन करके मॉइस्चराइज करोगे तो आपके स्किन में मॉइस्चराइजर अच्छे से और ज़्यादा देर तक रहता है, बिकॉज आप टोनर से जो भी रेसिड्यू है प्रीवियस प्रोडक्ट का वो पूरी तरह निकल जाता है। सो इसलिए आप टोनर करके स्किन के प्रीवियस प्रोडक्ट निकाल के जब आप मॉइस्चराइजर करोगे तो आपका स्किन पे वो ज़्यादा देर रहेगा। ठीक है, सो आई विल अप्लाई क्विकली माय विटामिन सी सीरम। Moisturizer, which is, we call it day protection lotion. You just need literally like smaller than like a pea size amount bus. And I'll end up with the sunscreen. Again, literally thank you so much for being a model. Would you like to say something? How did you feel? Can you share? You can talk about your experience. आपको कैसे feel हुआ, कैसा लगा आपको machine के बारे में कुछ बोलना है? So you can talk about that.
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब वो मशीन चला रहे थे तो फील हो रहा था कि अंदर के सब जो हमारे सेल्स रहते हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। टाइटनिंग का भी अभी भी मुझे फील है कि टाइट हो चुका है बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मॉडल। सो लिटरली वो स्किन के अंदर तक फील होता है उसका करंट जब जा रहा है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड कि वो क्या बोलती हैं सुन सकते हैं हम लोग करके। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सो मच पेशेंट एंड इतनी देर टाइम देने के लिए। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आई कैन स्टिल आंसर। वहाँ पे उसमें चेंज करो ना जल्दी से। किसका कुछ क्वेश्चन है? सॉरी, it's visible, right? Yeah, so that's why I was saying that, you know, if you do it like a complete facial and with rest of the things, amazing, beautiful result. And as I said, to safety side of that, also I have not taken like lot of intensity. So intensity भी मैं बहुत ज़्यादा रखे बिना ही काम कर रही थी कि client भी पहली बार experience कर रहे हैं, even I don't know her. Like next time if I would be doing it, I will go a little more higher. So उस हिसाब से you can see a quite good result. Thank you so much. Sorry. Yes, yes, body can be high. And literally body works wonderful. You can work for the tummy, you can work for the भाई change किया? वगैरह तो it's like, you know, हैं? and चेंज कर दो। ये awareness की सिर्फ ज़रूरत है. If we aware our client, they'll be happy because now you see people do wear dresses and all. वहाँ पे you know, they get very conscious cellular के लिए. So if you treat something like that and they know there is a treatment, obviously like you know, a lot of people would opt for that. There is separate, but if you want to work only body specific treatments, then definitely you can go for the higher version. There is a bigger version of the electrode, so which is like you know the current wise. But with this, if you have, you're working on the spot, smaller areas, you can work with this. Suppose you want to work for the you know completely body treatments only करना है, so then there is a different machine which has got bigger, just bigger gadget wise. Any further questions? Thank you, Miss Lalita Mangalpalli, for taking time out from your busy schedule and joining us here. Thank you so much. Pleasure is fine. You're welcome. This was a very nice session and I'm sure the audience loved it. I am also hoping the same. Thank you so much, everyone. Now, as a token of a gratitude, we invite Mr. Pushkar Chennai, CEO and Director of Jackie Kiva, to present you with a memento. And Dermalogica would also like to present you with a token of their appreciation. A big hand for Miss Lalita Mangalpalli. दादा